mekan için pusatçını alırız. Kılıç sanıyor. Şenler nedir? Nizam-ı alem için. O vakit. Ölümden korkan var mı? Bundan korkan var mıdır? Yoktur. 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 Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. السلام علیکم ناظرین مان اوکتم صاحب کو قیدی کر کے قلعے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اوکتم صاحب بار بار گر جاتے ہیں تو وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دوسری جانب فتح کے بعد تمام جگہوں پر کئی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں، جس کے بعد عثمان کہتا ہے نہ تو ہم نام کے لیے لڑتے ہیں اور نہ ہی شہرت کے لیے، ہم صرف نظام عالم کے لیے زمینیں حاصل کرتے ہیں، کفار کی صفوں کو مشتہر کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، ہمارے بعد والوں کے لیے میراث بنے گا، لیکن جو کوئی بھی ہماری میراث لینے کی کوشش کرے گا تو پھر پتھر پر پتھر اور کاندھے پر سر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی نعرے بلند کرتے ہیں عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد۔ جس کے بعد الجھجک بینگے خاتون سے کہتی ہے والدہ کیا ہوا؟ بینگے خاتون کہتی ہے کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے، تمہارے بابا تو ایسا نہیں کرتے تھے، مگر جنگ کا کہتے تھے تو سب سے پہلے نکلتے تھے۔ الجھجک کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، وہ بہت جلد یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں عثمان کہتا ہے لے آؤ اس کتے کو، جس کے بعد بوران اور اس کے سپاہی اولف کو وہاں پر لے آتے ہیں۔ عثمان اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میں سے ایک مقابلے میں آئے یا 1000 آئے، ہم اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے تم سب میرے خلاف متحد ہو جاؤ، لیکن تمہارا انجام یہی ہوگا۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے میری زندگی جنگوں میں گزر گئی، تمہاری طرح کے ہزاروں کو میں ختم کر چکا ہوں، بازنطینی اس سرزمین کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے، تم نیمان اور ایندرین کوس کے بیچ پھنس گئے ہو، تمہاری موت بہت قریب ہے۔ عثمان کہتا ہے ہمارے مقصد کی وجہ سے ہماری موت ہمیشہ ہمارے قریب رہتی ہے، موت ہمارے لیے ملاقات اور شہادت ہمارے لیے دعوت ہے، لیکن تمہاری موت آج ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر عثمان اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف نیمان اکتم کو لے کر اناگول کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے نیمان آ رہا ہے۔ یہ سن کر اولف خوش ہو جاتا ہے اور باقی سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اولف عثمان سے کہتا ہے تمہارے پاس اتنی جرت نہیں کہ نیمان کے دوست کو نیمان کے سامنے مار سکو۔ اسی دوران نیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ نیمان کہتا ہے آج ہم دونوں کے ہاتھ اچھا شکار لگا ہے عثمان۔ یہ کہہ کر وہ اکتم کو آگے پھینکتا ہے۔ یہ دیکھ کر بینگے خاتون اور الجھجک بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اولف کہتا ہے یہ احمق سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے مار سکتا ہے۔ یہ سن کر نیمان کہتا ہے یہ غلط سوچ رہا ہے، بالکل اپنے پیچھے موجود والدہ سلطان کی طرح، وہ بھی ہر بار غلط انتخاب کرتی ہے۔ پہلے اس نے مجھے سونا پیش کیا، اب اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسمہان سلطان کہتی ہے میرا انتخاب غلط نہیں، میں اپنی غلطی سے لوٹ آئی ہوں۔ یہ سن کر نیمان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے عثمان اگر اکتم کی جان کی کوئی قیمت نہیں تو مار دو اولف کو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار اکتم کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اکتم کہتا ہے جناب ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے اللہ کے نام کے سربلندی کی خاطر۔ پھر اکتم کہتا ہے ہم شہید کیوں ہوتے ہیں؟ تو عثمان کہتا ہے تاکہ اس نظام کو دنیا بھر میں پھیلایا جا سکے۔ پھر اکتم کہتا ہے جینے والا کس لیے جیتا ہے؟ تو عثمان کہتا ہے کس علما کے لیے۔ اکتم کہتا ہے تو پھر یہ بوڑھا بیڑیا آج اپنی موت کو گلے لگا رکھا ہے۔ خبردار عثمان صاحب، شہادت کی آرزو کرنے والے کو اس کتے کے برابر مت سمجھیے گا اور اسے ہرگز معاف مت کرنا۔ یہ سن کر عثمان کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ نیمان کہتا ہے اولف کو آزاد کر دو عثمان،
वरना ओक्तम से इब्तदा होगा, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करके रख दूंगा। ये सुनकर इस्मेहान उस्मान के पास आ जाती है और कहती है, हम वायदा करते हैं, हम किला लेना चाहते थे सो हमने ले लिया, ओलफ को हम बाद में मार देंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है, नहीं ये आज ही मरेगा। जिसके बाद इस्मेहान पीछे हट जाती है। नईमान कहता है, खबरदार ऐसा मत करना। यह सुनकर उस्मान कहता है, हम सिर्फ एक ही कानून के वफादार हैं, जालिम के साथ रहम, मजलूम के साथ गद्दारी है। नईमान कहता है, तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलफ पर नहीं बल्कि ओक्तम की गर्दन पर भी वार करेगा। उस्मान कहता है, तुमने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है, अगर ओलफ मरेगा तो लाश बनेगा, लेकिन अगर ओक्तम साहब मरे तो वह शहीद कहलाएंगे। फिर उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है, बताओ मौत से डरने वाला कोई है? ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं, कोई नहीं जनाब। फिर वो बेंगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है, मौत से डरने वाला कोई है? बेंगे खातून कहती है, नहीं। अलजिजक भी कहती है, नहीं। फिर ओक्तम भी कहता है, नहीं, मौत से डरने वाला कोई नहीं है। उस्मान कहता है, अब ओलफ को गौर से देखो, इसका अंजाम गौर से देखो। ये कहकर उस्मान एक ही वार करके उसका सर तन से जुदा कर देता है और वो वहीं पर वासले जहन्नम हो जाता है। ये देखते ही ओक्तम साहब कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और फिर नईमान वार करके ओक्तम साहब को शहीद कर देता है और फिर इसी के साथ ओक्तम साहब शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। अपने शोर को शहीद होता हुआ देखकर बेंगे खातून बहुत करब में थी, जबकि अलजिजक की आंखों से भी आंसू जारी थे। उस्मान कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और हम उसी के पास वापस लौट कर जाएंगे। नईमान कहता है, तुमने जो किया है यही तुम्हारा अंजाम साबित होगा उस्मान। ये सुनकर उस्मान कहता है, हम सब मर जाएंगे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूंगा। और यहाँ पर इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दूसरी तरफ नईमान ओक्तम को लेकर अनागोल के दरवाजे पर आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है, नईमान आ रखा है। यह सुनकर ओलफ खुश हो जाता है और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओलफ उस्मान से कहता है, तुम्हारे पास इतनी जुर्रत नहीं कि नईमान के दोस्त को नईमान के सामने मार सको। इसी दौरान नईमान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। नईमान कहता है, आज हम दोनों के हाथ अच्छा शिकार लगा है उस्मान। ये कहकर वो ओक्तम को आगे फेंकता है। ये देखकर बेंगे खातून और अलजिजक बहुत परेशान हो जाती हैं। ओलफ कहता है, ये अहमक सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है। ये सुनकर नईमान कहता है, ये गलत सोच रहा है, बिल्कुल अपने पीछे मौजूद वालिदा सुल्तान की तरह। वो भी हर बार गलत इंतखाब करती है। पहले उसने मुझे सोना पेश किया, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इस्मेहान सुल्तान कहती है, मेरा इंतखाब गलत नहीं, मैं अपनी गलती से लौट आई हूँ। ये सुनकर नईमान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है, उस्मान अगर ओक्तम की जान की कोई कीमत नहीं तो मार दो ओलफ को। ये कहकर वो अपनी तलवार ओक्तम की गर्दन पर रख देता है। ओक्तम कहता है, जनाब हम किस लिए लड़ रहे हैं? उस्मान कहता है, अल्लाह के नाम के सरबुलंदी की खातिर। फिर ओक्तम कहता है, हम शहीद क्यों होते हैं? तो उस्मान कहता है, ताकि इस निज़ाम को दुनिया भर में फैलाया जा सके। फिर ओक्तम कहता है, जीने वाला किस लिए जीता है? तो उस्मान कहता है, किज़ले इल्मा के लिए। ओक्तम कहता है, तो फिर ये बूढ़ा भेड़िया आज अपनी मौत को गले लगा रखा है। खबरदार उस्मान साहब, शहादत की आरज़ू करने वाले को इस कुत्ते के बराबर मत समझिएगा और इसे हरगिज माफ मत करना। ये सुनकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। नईमान कहता है, ओलफ को आजाद कर दो उस्मान, वरना ओक्तम से इब्तदा होगा, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करके रख दूंगा। ये सुनकर इस्मेहान उस्मान के पास आ जाती है और कहती है, हम वायदा करते हैं, हम किला लेना चाहते थे सो हमने ले लिया, ओलफ को हम बाद में मार देंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है, नहीं ये आज ही मरेगा। जिसके बाद इस्मेहान पीछे हट जाती है। नईमान कहता है, खबरदार ऐसा मत करना। यह सुनकर उस्मान कहता है, हम सिर्फ एक ही कानून के वफादार हैं, जालिम के साथ रहम, मजलूम के साथ गद्दारी है। नईमान कहता है, तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलफ पर नहीं बल्कि ओक्तम की गर्दन पर भी वार करेगा। उस्मान कहता है, तुमने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है, अगर ओलफ मरेगा तो लाश बनेगा, लेकिन अगर ओक्तम साहब मरे तो वह शहीद कहलाएंगे। फिर उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है, बताओ मौत से डरने वाला कोई है? ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं, कोई नहीं जनाब। फिर वो बेंगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है, मौत से डरने वाला कोई है? बेंगे खातून कहती है,
नहीं। अलजिजक भी कहती है नहीं। फिर ओक्तम भी कहता है नहीं, मौत से डरने वाला कोई नहीं है। उस्मान कहता है अब ओलफ को गौर से देखो, इसका अंजाम गौर से देखो। ये कहकर उस्मान एक ही वार करके उसका सर तन से जुदा कर देता है और वो वहीं पर वासले जहन्नम हो जाता है। ये देखते ही ओक्तम साहब कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और फिर नईमान वार करके ओक्तम साहब को शहीद कर देता है और फिर इसी के साथ ओक्तम साहब शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। अपने शोर को शहीद होता हुआ देखकर बेंगे खातून बहुत दूसरी तरफ नईमान ओक्तम को लेकर अनागोल के दरवाजे पर आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है नईमान आ रखा है। यह सुनकर ओलफ खुश हो जाता है और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओलफ उस्मान से कहता है तुम्हारे पास इतनी जुर्रत नहीं कि नईमान के दोस्त को नईमान के सामने मार सको। इसी दौरान नईमान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। नईमान कहता है आज हम दोनों के हाथ अच्छा शिकार लगा है उस्मान। ये कहकर वो ओक्तम को आगे फेंकता है। ये देखकर बेंगे खातून और अलजिजक बहुत परेशान हो जाती हैं। ओलफ कहता है ये अहमक सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है। ये सुनकर नईमान कहता है ये गलत सोच रहा है, बिल्कुल अपने पीछे मौजूद वालिदा सुल्तान की तरह। वो भी हर बार गलत इंतखाब करती है। पहले उसने मुझे सोना पेश किया, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसमें हान सुल्तान कहती है मेरा इंतखाब गलत नहीं, मैं अपनी गलती से लौट आई हूँ। ये सुनकर नईमान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है उस्मान अगर ओक्तम की जान की कोई कीमत नहीं तो मार दो ओलफ को। ये कहकर वो अपनी तलवार ओक्तम की गर्दन पर रख देता है। ओक्तम कहता है जनाब हम किस लिए लड़ रहे हैं? उस्मान कहता है अल्लाह के नाम के सरबुलंदी की खातिर। फिर ओक्तम कहता है हम शहीद क्यों होते हैं? तो उस्मान कहता है ताकि इस निज़ाम को दुनिया भर में फैलाया जा सके। फिर ओक्तम कहता है जीने वाला किस लिए जीता है? तो उस्मान कहता है किज़ले इल्मा के लिए। ओक्तम कहता है तो फिर ये बूढ़ा भेड़िया आज अपनी मौत को गले लगा रखा है। खबरदार उस्मान साहब, शहादत की आरज़ू करने वाले को इस कुत्ते के बराबर मत समझिएगा और इसे हरगिज माफ मत करना। ये सुनकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। नईमान कहता है ओलफ को आजाद कर दो उस्मान, वरना ओक्तम से इब्तदा होगा, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करके रख दूंगा। ये सुनकर इस्मेहान उस्मान के पास आ जाती है और कहती है हम वायदा करते हैं, हम किला लेना चाहते थे सो हमने ले लिया, ओलफ को हम बाद में मार देंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है नहीं, ये आज ही मरेगा। जिसके बाद इस्मेहान पीछे हट जाती है। नईमान कहता है खबरदार ऐसा मत करना। यह सुनकर उस्मान कहता है हम सिर्फ एक ही कानून के वफादार हैं, जालिम के साथ रहम, मजलूम के साथ गद्दारी है। नईमान कहता है तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलफ पर नहीं बल्कि ओक्तम की गर्दन पर भी वार करेगा। उस्मान कहता है तुमने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है, अगर ओलफ मरेगा तो लाश बनेगा, लेकिन अगर ओक्तम साहब मरे तो वह शहीद कहलाएंगे। फिर उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है बताओ मौत से डरने वाला कोई है? ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं कोई नहीं जनाब। फिर वो बेंगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है मौत से डरने वाला कोई है? बेंगे खातून कहती है नहीं। अलजिजक भी कहती है नहीं। फिर ओक्तम भी कहता है नहीं, मौत से डरने वाला कोई नहीं है। उस्मान कहता है अब ओलफ को गौर से देखो, इसका अंजाम गौर से देखो। ये कहकर उस्मान एक ही वार करके उसका सर तन से जुदा कर देता है और वो वहीं पर वासले जहन्नम हो जाता है। ये देखते ही ओक्तम साहब कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और फिर नईमान वार करके ओक्तम साहब को शहीद कर देता है और फिर इसी के साथ ओक्तम साहब शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। अपने शोर को शहीद होता हुआ देखकर बेंगे खातून बहुत दूसरी तरफ नईमान ओक्तम को लेकर अनागोल के दरवाजे पर आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है नईमान आ रखा है। यह सुनकर ओलफ खुश हो जाता है और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओलफ उस्मान से कहता है तुम्हारे पास इतनी जुर्रत नहीं कि नईमान के दोस्त को नईमान के सामने मार सको। इसी दौरान नईमान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। नईमान कहता है आज हम दोनों के हाथ अच्छा शिकार लगा है उस्मान। ये कहकर वो ओक्तम को आगे फेंकता है। ये देखकर बेंगे खातून और अलजिजक बहुत परेशान हो जाती हैं। ओलफ कहता है ये अहमक सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है। ये सुनकर नईमान कहता है ये गलत सोच रहा है, बिल्कुल अपने पीछे मौजूद वालिदा सुल्तान की तरह। वो भी हर बार गलत इंतखाब करती है। पहले उसने मुझे सोना पेश किया, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसमें हान सुल्तान कहती है मेरा इंतखाब गलत नहीं, मैं अपनी गलती से लौट आई हूँ। ये सुनकर नईमान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है उस्मान अगर ओक्तम की जान की कोई कीमत नहीं तो मार दो ओलफ को। ये कहकर वो अपनी तलवार
तलवार ओक्तम की गर्दन पर रख देता है। ओक्तम कहता है, जनाब हम किस लिए लड़ रहे हैं? उस्मान कहता है, अल्लाह के नाम के सरबुलंदी की खातिर। फिर ओक्तम कहता है, हम शहीद क्यों होते हैं? तो उस्मान कहता है, ताकि इस निज़ाम को दुनिया भर में फैलाया जा सके। फिर ओक्तम कहता है, जीने वाला किस लिए जीता है? तो उस्मान कहता है, किज़ले इल्मा के लिए। ओक्तम कहता है, तो फिर ये बूढ़ा भेड़िया आज अपनी मौत को गले लगा रखा है। खबरदार उस्मान साहब, शहादत की आरज़ू करने वाले को इस कुत्ते के बराबर मत समझिएगा और इसे हरगिज माफ मत करना। ये सुनकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। नईमान कहता है, ओलफ को आजाद कर दो उस्मान, वरना ओक्तम से इब्तदा होगा, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करके रख दूंगा। ये सुनकर इस्मेहान उस्मान के पास आ जाती है और कहती है, हम वायदा करते हैं, हम किला लेना चाहते थे सो हमने ले लिया, ओलफ को हम बाद में मार देंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है, नहीं ये आज ही मरेगा। जिसके बाद इस्मेहान पीछे हट जाती है। नईमान कहता है, खबरदार ऐसा मत करना। यह सुनकर उस्मान कहता है, हम सिर्फ एक ही कानून के वफादार हैं, जालिम के साथ रहम, मजलूम के साथ गद्दारी है। नईमान कहता है, तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलफ पर नहीं बल्कि ओक्तम की गर्दन पर भी वार करेगा। उस्मान कहता है, तुमने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है, अगर ओलफ मरेगा तो लाश बनेगा, लेकिन अगर ओक्तम साहब मरे तो वह शहीद कहलाएंगे। फिर उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है, बताओ मौत से डरने वाला कोई है? ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं, कोई नहीं जनाब। फिर वो बेंगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है, मौत से डरने वाला कोई है? बेंगे खातून कहती है, नहीं। अलजिजक भी कहती है, नहीं। फिर ओक्तम भी कहता है, नहीं, मौत से डरने वाला कोई नहीं है। उस्मान कहता है, अब ओलफ को गौर से देखो, इसका अंजाम गौर से देखो। ये कहकर उस्मान एक ही वार करके उसका सर तन से जुदा कर देता है और वो वहीं पर वासले जहन्नम हो जाता है। ये देखते ही ओक्तम साहब कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और फिर नईमान वार करके ओक्तम साहब को शहीद कर देता है और फिर इसी के साथ ओक्तम साहब शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। अपने शोर को शहीद होता हुआ देखकर बेंगे खातून बहुत। दूसरी तरफ नईमान ओक्तम को लेकर अनागोल के दरवाजे पर आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है, नईमान आ रखा है। यह सुनकर ओलफ खुश हो जाता है और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओलफ उस्मान से कहता है, तुम्हारे पास इतनी जुर्रत नहीं कि नईमान के दोस्त को नईमान के सामने मार सको। इसी दौरान नईमान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। नईमान कहता है, आज हम दोनों के हाथ अच्छा शिकार लगा है उस्मान। ये कहकर वो ओक्तम को आगे फेंकता है। ये देखकर बेंगे खातून और अलजिजक बहुत परेशान हो जाती हैं। ओलफ कहता है, ये अहमक सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है। ये सुनकर नईमान कहता है, ये गलत सोच रहा है, बिल्कुल अपने पीछे मौजूद वालिदा सुल्तान की तरह। वो भी हर बार गलत इंतखाब करती है। पहले उसने मुझे सोना पेश किया, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसमें हान सुल्तान कहती है, मेरा इंतखाब गलत नहीं, मैं अपनी गलती से लौट आई हूँ। ये सुनकर नईमान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है, उस्मान अगर ओक्तम की जान की कोई कीमत नहीं तो मार दो ओलफ को। ये कहकर वो अपनी तलवार ओक्तम की गर्दन पर रख देता है। ओक्तम कहता है, जनाब हम किस लिए लड़ रहे हैं? उस्मान कहता है, अल्लाह के नाम के सरबुलंदी की खातिर। फिर ओक्तम कहता है, हम शहीद क्यों होते हैं? तो उस्मान कहता है, ताकि इस निज़ाम को दुनिया भर में फैलाया जा सके। फिर ओक्तम कहता है, जीने वाला किस लिए जीता है? तो उस्मान कहता है, किज़ले इल्मा के लिए। ओक्तम कहता है, तो फिर ये बूढ़ा भेड़िया आज अपनी मौत को गले लगा रखा है। खबरदार उस्मान साहब, शहादत की आरज़ू करने वाले को इस कुत्ते के बराबर मत समझिएगा और इसे हरगिज माफ मत करना। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। नईमान कहता है, ओलफ को आजाद कर दो उस्मान, वरना ओक्तम से इब्तदा होगा, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करके रख दूंगा। यह सुनकर इस्मेहान उस्मान के पास आ जाती है और कहती है, हम वायदा करते हैं, हम किला लेना चाहते थे सो हमने ले लिया, ओलफ को हम बाद में मार देंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है, नहीं ये आज ही मरेगा। जिसके बाद इस्मेहान पीछे हट जाती है। नईमान कहता है, खबरदार ऐसा मत करना। यह सुनकर उस्मान कहता है, हम सिर्फ एक ही कानून के वफादार हैं, जालिम के साथ रहम, मजलूम के साथ गद्दारी है।
नईमान कहता है तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलफ पर नहीं बल्कि ओक्तम की गर्दन पर भी वार करेगा। उस्मान कहता है तुमने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है, अगर ओलफ मरेगा तो लाश बनेगा, लेकिन अगर ओक्तम साहब मरे तो वह शहीद कहलाएंगे। फिर उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है बताओ मौत से डरने वाला कोई है? ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं कोई नहीं जनाब। फिर वो बेंगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है मौत से डरने वाला कोई है? बेंगे खातून कहती है नहीं। अलजिजक भी कहती है नहीं। फिर ओक्तम भी कहता है नहीं, मौत से डरने वाला कोई नहीं है। उस्मान कहता है अब ओलफ को गौर से देखो, इसका अंजाम गौर से देखो। ये कहकर उस्मान एक ही वार करके उसका सर तन से जुदा कर देता है और वो वहीं पर वासले जहन्नम हो जाता है। ये देखते ही ओक्तम साहब कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और फिर नईमान वार करके ओक्तम साहब को शहीद कर देता है और फिर इसी के साथ ओक्तम साहब शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। अपने शोर को शहीद होता हुआ देखकर बेंगे खातून बहुत दूसरी तरफ नईमान ओक्तम को लेकर अनागोल के दरवाजे पर आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है नईमान आ रखा है। यह सुनकर ओलफ खुश हो जाता है और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओलफ उस्मान से कहता है तुम्हारे पास इतनी जुर्रत नहीं कि नईमान के दोस्त को नईमान के सामने मार सको। इसी दौरान नईमान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। नईमान कहता है आज हम दोनों के हाथ अच्छा शिकार लगा है उस्मान। ये कहकर वो ओक्तम को आगे फेंकता है। ये देखकर बेंगे खातून और अलजिजक बहुत परेशान हो जाती हैं। ओलफ कहता है ये अहमक सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है। ये सुनकर नईमान कहता है ये गलत सोच रहा है, बिल्कुल अपने पीछे मौजूद वालिदा सुल्तान की तरह। वो भी हर बार गलत इंतखाब करती है। पहले उसने मुझे सोना पेश किया, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसमें हान सुल्तान कहती है मेरा इंतखाब गलत नहीं, मैं अपनी गलती से लौट आई हूँ। ये सुनकर नईमान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है उस्मान अगर ओक्तम की जान की कोई कीमत नहीं तो मार दो ओलफ को। ये कहकर वो अपनी तलवार ओक्तम की गर्दन पर रख देता है। ओक्तम कहता है जनाब हम किस लिए लड़ रहे हैं? उस्मान कहता है अल्लाह के नाम के सरबुलंदी की खातिर। फिर ओक्तम कहता है हम शहीद क्यों होते हैं? तो उस्मान कहता है ताकि इस निज़ाम को दुनिया भर में फैलाया जा सके। फिर ओक्तम कहता है जीने वाला किस लिए जीता है? तो उस्मान कहता है किसले इल्मा के लिए। ओक्तम कहता है तो फिर ये बूढ़ा भेड़िया आज अपनी मौत को गले लगा रखा है। खबरदार उस्मान साहब, शहादत की आरज़ू करने वाले को इस कुत्ते के बराबर मत समझिएगा और इसे हरगिज माफ मत करना। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। नईमान कहता है ओलफ को आजाद कर दो उस्मान, वरना ओक्तम से इब्तदा होगा, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करके रख दूंगा। ये सुनकर इस्मेहान उस्मान के पास आ जाती है और कहती है हम वायदा करते हैं, हम किला लेना चाहते थे सो हमने ले लिया, ओलफ को हम बाद में मार देंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है नहीं, ये आज ही मरेगा। जिसके बाद इस्मेहान पीछे हट जाती है। नईमान कहता है खबरदार ऐसा मत करना। यह सुनकर उस्मान कहता है हम सिर्फ एक ही कानून के वफादार हैं, जालिम के साथ रहम, मजलूम के साथ गद्दारी है। नईमान कहता है तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलफ पर नहीं बल्कि ओक्तम की गर्दन पर भी वार करेगा। उस्मान कहता है तुमने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है, अगर ओलफ मरेगा तो लाश बनेगा, लेकिन अगर ओक्तम साहब मरे तो वह शहीद कहलाएंगे। फिर उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है बताओ मौत से डरने वाला कोई है? ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं कोई नहीं जनाब। फिर वो बेंगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है मौत से डरने वाला कोई है? बेंगे खातून कहती है नहीं। अलजिजक भी कहती है नहीं। फिर ओक्तम भी कहता है नहीं, मौत से डरने वाला कोई नहीं है। उस्मान कहता है अब ओलफ को गौर से देखो, इसका अंजाम गौर से देखो। ये कहकर उस्मान एक ही वार करके उसका सर तन से जुदा कर देता है और वो वहीं पर वासले जहन्नम हो जाता है। ये देखते ही ओक्तम साहब कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और फिर नईमान वार करके ओक्तम साहब को शहीद कर देता है और फिर इसी के साथ ओक्तम साहब शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। अपने शोर को शहीद होता हुआ देखकर बेंगे खातून बहुत दूसरी तरफ नईमान ओक्तम को लेकर अनागोल के दरवाजे पर आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है नईमान आ रखा है। यह सुनकर ओलफ खुश हो जाता है और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओलफ उस्मान से कहता है तुम्हारे पास
इतनी जुर्रत नहीं कि नईमान के दोस्त को नईमान के सामने मार सको। इसी दौरान नईमान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। नईमान कहता है, आज हम दोनों के हाथ अच्छा शिकार लगा है उस्मान। ये कहकर वो ओक्तम को आगे फेंकता है। ये देखकर बेंगे खातून और अलजिजक बहुत परेशान हो जाती हैं। ओलफ कहता है, ये अहमक सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है। ये सुनकर नईमान कहता है, ये गलत सोच रहा है, बिल्कुल अपने पीछे मौजूद वालिदा सुल्तान की तरह। वो भी हर बार गलत इंतखाब करती है। पहले उसने मुझे सोना पेश किया, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसमें हान सुल्तान कहती है, मेरा इंतखाब गलत नहीं, मैं अपनी गलती से लौट आई हूँ। ये सुनकर नईमान अपने दूसरी तरफ नईमान ओक्तम को लेकर अनागोल के दरवाजे पर आ जाता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और कहता है, नईमान आ रखा है। यह सुनकर ओलफ खुश हो जाता है और बाकी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ओलफ उस्मान से कहता है, तुम्हारे पास इतनी जुर्रत नहीं कि नईमान के दोस्त को नईमान के सामने मार सको। इसी दौरान नईमान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। नईमान कहता है, आज हम दोनों के हाथ अच्छा शिकार लगा है उस्मान। ये कहकर वो ओक्तम को आगे फेंकता है। ये देखकर बेंगे खातून और अलजिजक बहुत परेशान हो जाती हैं। ओलफ कहता है, ये अहमक सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है। ये सुनकर नईमान कहता है, ये गलत सोच रहा है, बिल्कुल अपने पीछे मौजूद वालिदा सुल्तान की तरह। वो भी हर बार गलत इंतखाब करती है। पहले उसने मुझे सोना पेश किया, अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसमें हान सुल्तान कहती है, मेरा इंतखाब गलत नहीं, मैं अपनी गलती से लौट आई हूँ। ये सुनकर नईमान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है, उस्मान, अगर ओक्तम की जान की कोई कीमत नहीं तो मार दो ओलफ को। ये कहकर वो अपनी तलवार ओक्तम की गर्दन पर रख देता है। ओक्तम कहता है, जनाब, हम किस लिए लड़ रहे हैं? उस्मान कहता है, अल्लाह के नाम के सरबुलंदी की खातिर। फिर ओक्तम कहता है, हम शहीद क्यों होते हैं? तो उस्मान कहता है, ताकि इस निज़ाम को दुनिया भर में फैलाया जा सके। फिर ओक्तम कहता है, जीने वाला किस लिए जीता है? तो उस्मान कहता है, किज़ले इल्मा के लिए। ओक्तम कहता है, तो फिर ये बूढ़ा भेड़िया आज अपनी मौत को गले लगा रखा है। खबरदार उस्मान साहब, शहादत की आरज़ू करने वाले को इस कुत्ते के बराबर मत समझिएगा और इसे हरगिज माफ मत करना। ये सुनकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। नईमान कहता है, ओलफ को आजाद कर दो उस्मान, वरना ओक्तम से इब्तदा होगा, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करके रख दूंगा। ये सुनकर इस्मेहान उस्मान के पास आ जाती है और कहती है, हम वायदा करते हैं, हम किला लेना चाहते थे सो हमने ले लिया, ओलफ को हम बाद में मार देंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है, नहीं, ये आज ही मरेगा। जिसके बाद इस्मेहान पीछे हट जाती है। नईमान कहता है, खबरदार, ऐसा मत करना। यह सुनकर उस्मान कहता है, हम सिर्फ एक ही कानून के वफादार हैं, जालिम के साथ रहम, मजलूम के साथ गद्दारी है। नईमान कहता है, तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलफ पर नहीं बल्कि ओक्तम की गर्दन पर भी वार करेगा। उस्मान कहता है, तुमने ठीक कहा, लेकिन एक फर्क है, अगर ओलफ मरेगा तो लाश बनेगा, लेकिन अगर ओक्तम साहब मरे तो वह शहीद कहलाएंगे। फिर उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है, बताओ, मौत से डरने वाला कोई है? ये सुनकर तमाम सिपाही कहते हैं, कोई नहीं जनाब। फिर वो बेंगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है, मौत से डरने वाला कोई है? बेंगे खातून कहती है, नहीं। अलजिजक भी कहती है, नहीं। फिर ओक्तम भी कहता है, नहीं, मौत से डरने वाला कोई नहीं है। उस्मान कहता है, अब ओलफ को गौर से देखो, इसका अंजाम गौर से देखो। ये कहकर उस्मान एक ही वार करके उसका सर तन से जुदा कर देता है और वो वहीं पर वासले जहन्नम हो जाता है। ये देखते ही ओक्तम साहब कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं और फिर नईमान वार करके ओक्तम साहब को शहीद कर देता है और फिर इसी के साथ ओक्तम साहब शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। अपने शोहर को शहीद होता हुआ देखकर बेंगे खातून बहुत